Okay, good morning all. We will start the class in the continuation of the previous class. So in the previous class, we have seen the introduction of Hadoop. We have seen about the definition of a big data. Then we have seen what is Hadoop. We have also studied the 5 V's of the big data. That was the volume, the velocity, the variety, the veracity, and the value of the big data. Now today, we will start the evaluation of Hadoop. I think we have studied in the previous class, or we will start again from here only. So how the Hadoop came in the existence when we were working on a limited data. When the big data or when the enormous data was evolved, then there came a big data in the market. So Apache Software Foundation is the developers of Hadoop, and its co-founders are Doug Cutting and Mike Cafarella. Its co-founder, Doug Cutting, named this Hadoop on his son's toy elephant. उनके बच्चे का जो टॉय एलिफेंट था, उसका नाम था Hadoop. So just to memorize or just उन्होंने अपने बेटे के खिलौने के नाम पर इसका नाम रख दिया Hadoop. So in 2003, the Google releases first research paper on GFS, that is a Google file system. अब Google file system क्या था कि जो Google सर्च इंजन जो इन्हें बनाया था, how it was working, how it was dealing with the database, how इंटरनेट इश्यू आ रहा है, जो भी है, how the Google सर्च इंजन वर्क्स. तो उस फाइल सिस्टम पर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया. उस रिसर्च पेपर को स्टडी करने के बाद इन 2006, in January 2006, after about 2.5 years, MapReduce development started on the Apache Nutch, which consists of around 6,000 lines coding for it and around 5,000 lines of coding for HDFS. In April 2006, Hadoop, the first version was released. So Hadoop की इवॉल्वमेंट की बात करें, अगर अपन इवोल्यूशन की बात करें, तो उसका जो बेस था, वो बेस इसका GFS है, that is a Google file system. उसी के आगे ही Hadoop was started. So क्वेश्चन अराइज ये होता है कि पहले कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच थी टू प्रोसेस द डेटा एंड व्हाई द Hadoop केम इन एग्जिस्टेंस. तो इनिशियली जब हम बात कर रहे थे, तब हमारे पास क्या होता था, एक सर्वर होता था. उस सर्वर पे हमारे पास एक डेटाबेस का स्टोरेज होता था, और जो हमारा डेटाबेस स्टोर होता था, उस पर हम अपनी क्वेरीज, उस पर हम अपना रिजल्ट निकालने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते थे, कुछ SQL क्वेरीज का यूज करते थे, और वो जो मेरा डेटाबेस स्टोर होता था वो बेसिकली Oracle पे होता था,
या एसक्यूएल सर्वर या जो भी आप डेटाबेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ आपने जो कंबाइन कर रखा हो उस पर आपका डेटाबेस होता था। सो मैक्सिमम डेटा की बात अगर हम करें तो एट दैट टाइम द 500 GB डेटा वाज अ वेरी ह्यूज डेटा that we work on the system. So practically जब डेटा हमारा बढ़ गया, जब हमारा डेटा मोर देन 500 GB हो गया और हमारे सिस्टम्स की कैपेसिटी नहीं रही, देन द Hadoop इवोल्यूशन केम। और जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच था जिसमें हम एक सिंगल लोकल मशीन होती थी, उस सिंगल लोकल मशीन पर हम डेटा को स्टोर करते थे और उस पर हम कुछ क्वेरीज जनरेट करके अपना आउटपुट निकालने की कोशिश करते थे, एंड दैट अप्रोच वाज नोन एज एंटरप्राइज रिसोर्स अप्रोच। नाउ द Hadoop approach came for processing data. तो यहाँ क्या हुआ? In this new Hadoop approach, instead of fetching the data on the local machine and sending the query to the data, obviously the query to process the data will not be as huge as the data itself. So moreover, at the server, the query is divided into several parts, and all these parts process the data simultaneously. And this is called a parallel execution and is possible because of MapReduce. MapReduce में जो Hadoop evaluate हुआ, Hadoop का भी हम आर्किटेक्चर नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। There is a MapReduce. उन्होंने क्या किया, हम जब एक क्वेरी सर्वर को भेजते हैं to fetch the data or to extract some information from the data, तो वो क्वेरी क्या होती है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वो पैरेलल एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है, and that is known as a MapReduce that we will see in the classes, next classes. So now not only there is a no need to fetch the data, but also the processing takes lesser time. चूंकि अब मल्टीपल क्वेरीज आ रही है, पैरेलल हमारा क्वेरीज डिफरेंट पार्ट्स में इन्वॉल्व ब्रोक हो गई है, तो क्या हो गया, हमारी स्पीड भी बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई मीन्स हमें टाइम कम लगने वाला है। So the result of this query is sent to the user, and thus the Hadoop make data storage, the processing, analyzing very easier than to the traditional approach. तो ट्रेडिशनल अप्रोच और Hadoop में अंतर एक सबसे बड़ा है, Hadoop मल्टीपल क्वेरीज, मतलब एक क्वेरी मल्टीपल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मल्टीपल मशीन्स पे जा रही है। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, हमारे पास सिंगल मशीन थी, सिंगल हमारा एसक्यूएल क्वेरी जनरेशन था, सिंगल हमारा डेटाबेस स्टोरेज कैपेसिटी थी, और हमारे स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड थी और रैम जो थी वो भी हमारी लिमिटेड थी। तो एवरी रिसोर्सेज वाज लिमिटेड इन द ट्रेडिशनल अप्रोच। ना जब Hadoop की हम बात कर रहे हैं तो Hadoop क्या हुआ, वो हमारा सर्वर कहाँ पर है, क्लाउड्स पर है, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। जब बड़ी बड़ी मशीन्स हैं तो हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल मशीन्स पे स्टोर है। जब वो मल्टीपल मशीन्स पे स्टोर है तो हम जो क्वेरी भेजते हैं वो मल्टीपल मशीन्स पे जाती है। जब मल्टीपल मशीन्स पे जा रही है तो मल्टीपल प्रोसेसर्स वहां काम कर रहे हैं, और मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो मुझे आउटपुट वहां से भेज रहे हैं, हमें रिजल्ट वहां से भेज रहे हैं। तो हमारा स्पीड भी बढ़ गया, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, हमारी क्वेरी सेंड करने की क्षमता भी बढ़ गई। सो इट इज वेरी इजियर देन द ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर हम इस Hadoop आर्किटेक्चर को देखें, इन द फिगर को अगर आप देखें ध्यान से, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द Hadoop HDFS, द Hadoop MapReduce एंड द Hadoop Yarn। अगर हम इनको बात करें तो दे आर 3 लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर जहां Hadoop MapReduce में काम कर रहा है, एक रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर जो रिसोर्स को मैनेज करेगा, मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज Hadoop Yarn। यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बिहेव करेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपको मुझे सपोर्ट करने वाला है। थर्ड द स्टोरेज लेयर। स्टोरेज लेयर मीन्स हमारा डेटा कहाँ स्टोरेज होने वाला है, वो कैसे होने वाला है। तो Hadoop फाइल सिस्टम अपन देखेंगे यहाँ पे,
So let us understand the three components. First, the HDFS, the Hadoop distributed file system. Distributed file system is, it's basically a dedicated file system to store big data with a cluster of commodity hardware or a cheaper hardware with streaming access pattern. It enables data to be stored at multiple nodes in the cluster, which ensures data security and the fault tolerance. Means जो डेटा हमारा मल्टीपल नोड्स पे स्टोर है, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में विथ द फीचर दैट इज अ डेटा सिक्योरिटी और फॉल्ट टॉलरेंस, अगर हमारा फॉल्ट हो जाए, कहीं डेटा हमारा ब्रेक हो जाए, नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारी फेल हो जाए, सर्वर क्रैश हो जाए, मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, तो आपका डेटा सेफ रहे. मींस इट कैन टॉलरेट द फॉल्ट आल्सो. सो HDFS इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, द Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो एक डेडिकेटेड फाइल सिस्टम है फॉर द स्टोरेज ऑफ बिग डेटा और द स्टोरेज ऑफ अ डेटा. सेकंड जो पार्ट है, मींस यहां तो हमने डेटा को स्टोर कर दिया, मतलब हम कोई मेरे पास डेटा है तो सबसे पहला पार्ट क्या है, मुझे डेटा को स्टोर करना है, तो अपने डेटा को स्टोर कर दिया यूजिंग HDFS. अब उस डेटा पे मुझे काम करना है, उसको काम करने के लिए मुझे चाहिए एक फंक्शन, एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज द MapReduce. सो डेटा वंस स्टोर्ड इन HDFS नाउ नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. अब मुझे उसको प्रोसेस करना है. फॉर एग्जाम्पल, suppose a query is sent to process a data set in the HDFS. Now the Hadoop identifies the data that is stored, उसको identify करेगा, and that is known as mapping. तो MapReduce का जो first part है, that is known as mapping, that is map. Mapping कर लेगा वो. Now the query is broken into multiple parts, and the result of these multiple parts are combined, and overall the result is sent back to the user, and this is known as reduce process. So that is known as reduce. MapReduce का जो second part है reduce, means process जो हुई मेरी reduce हुई. Thus, while HDFS is used to store the data, the MapReduce is used to process the data. Means MapReduce का function क्या है? First of all, mapping the data where is stored. For example की बात अगर हम करें, एक लेटर, पोस्ट ऑफिस की बात करें अगर अपन, तो एक लेटर आपके पास आता है, तो कहाँ जाता है? पहले लेटर वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, जहाँ पे स्टोरेज है, जहाँ डेटा स्टोर हुआ है. फिर उस लेटर पे जो एड्रेस लिखा होता है उसको मैप करके पोस्टमैन आपके घर पर आता है और वो डिलीवर करके जाता है. यहाँ पे MapReduce का मतलब सिंपल समझे, वो जो HDFS था वो फाइल सिस्टम था. फाइल सिस्टम क्या होता है पोस्ट ऑफिस में? सिटी वाइज, स्टेट वाइज, उनका पूरा का पूरा एक सिस्टम है. कोई भी लेटर कहीं से आप डालते हो तो वो लेटर जोन बटा हुआ है, जोन में फिर स्टेट बटे हुए हैं, स्टेट में सिटी बटे हुए हैं, सिटी में पोस्ट पिन कोड बटा हुआ है, पिन कोड से फिर पोस्टमैन बटा हुआ है. आप समझो, एक पूरा का पूरा फाइल सिस्टम है. मतलब पिन कोड से स्टार्ट होगा, ऊपर नाम तक आदमी जाएगा. पिन कोड है, स्टेट है, सिटी है, फिर मोहल्ला है, मोहल्ला के बाद उस व्यक्ति का नाम है, मकान नंबर है, मकान नंबर के बाद व्यक्ति का नाम. इन द सेम वे, जब हम डेटा को स्टोर कर दिया है, अब मुझे उस डेटा को सर्च करना, उस डेटा से मुझे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है. वी हैव टू डू द मैपिंग. मैपिंग मींस वी हैव टू फाइंड द एड्रेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड. उस एड्रेस पे हमें जाना है, दैट इज नोन एज मैपिंग. उससे फंक्शन से कुछ आउटपुट निकाल के लाना है, दैट इज नोन एज रिड्यूस प्रोसेस, एंड दैट इज अ रिड्यूस, एंड दैट ओवरऑल इज नोन एज MapReduce. अब इन दोनों प्रोसेस को कम्युनिकेट कौन करेगा? हु विल वर्क एज अ मीडिएटर? Who will work as an interface between this function MapReduce and the function where the data is stored, HDFS? Then the role is the YARN. यहाँ पे YARN जो है, it plays the role. So YARN stands for yet another resource negotiator. It is basically a dedicated operating system or Hadoop which manages the resources of the cluster and also function as a framework
for job scheduling in the Hadoop. मतलब क्या हुआ कि जो यान है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका काम है जॉब को शेड्यूल करना. जॉब शेड्यूल करना मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय जॉब? जॉब का मतलब है कि जो क्वेरी जनरेट आपने करी है, जो टास्क आपने लिया है, उस टास्क को एग्जीक्यूट कराने का काम है यान का. जिसका काम है इस कमांड को देना और जॉब को शेड्यूल करना. और जो शेड्यूल होगा, there are various types of scheduling. For example, the first come first scheduling, fair share scheduler, the capacity scheduler, etc. पर जो डिफॉल्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस है, that is the first come first. First come first means पहले आओ पहले पाओ. जो टास्क पहले दी गई है, that task will be performed first. Then after the second task will be performed, then the third task will be performed. That is the first come first. जब FIFO प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, first in first out. The same, the scheduling is here, the first come first serve. पहले आपको उसी का डेटा दिया जाएगा, उसी का आउटपुट दिया जाएगा जो पहले आएगा. So basically the Hadoop is divided into three parts. The first, the SDFS, second, the MapReduce, and third is the YARN. इन तीनों को कॉम्बिनेशन को मिला के the Hadoop was defined. एक जिस फिगर हमने इसमें शो किया है, that is the YARN architecture. जो YARN है, it is divided into three parts. That is the resource manager, the node manager, and the application master. रिसोर्स मैनेजर का वर्क जो होता है, इट्स वर्क एज अ सेंट्रल एजेंट. वो सीधा सीधा एक सेंट्रल एजेंट है जिसका काम है मैनेज एंड एलोकेट द क्लस्टर रिसोर्सेज. अगेन आई थिंक यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ए क्लस्टर. फिर एक बार अपन बात कर लें. क्लस्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया वेयर सेम टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड. एक पर्टिकुलर एरिया जो सिंपली आपको डेडिकेटेड किया गया है. देखिए, जब हम सर्वर पे बात करते हैं, क्लाउड पे बात करते हैं, क्लाउड पे जब आपने कहीं कोई सर्वर लिया होगा, तो वो सर्वर केवल डेडिकेटेड आपको नहीं है. वो सर्वर अगर 100 GB का है या 1 TB का है, तो 250 GB के कुछ पार्ट्स बने होंगे, 200 GB के पार्ट्स बने होंगे, कुछ 50 GB के पार्ट्स बने होंगे. मीन्स एक सर्वर को मल्टीपल डेटाबेस और मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा या तोड़ा गया होगा. तो उसमें से एक पार्ट आपका होगा, then we say it's a cluster. मतलब वो जो पार्ट है 200 GB का, मान लो आपने कोई 200 GB का आपने कोई डेटाबेस क्लाउड पे लिया है किराए पे, तो उन्हें आपको दे दिया. उस 200 GB में भी अब आपने जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, हो सकता है 50 GB में आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिए, 100 GB में आपने डेटाबेस स्टोर कर दिया होगा, 50 GB या 20 GB में कहीं आपका बैकअप ले रहे होंगे, बस 20 GB में कुछ और आप अपना सेव कर रहे होंगे. इट डिपेंड्स. जो भी आपका आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा होगा, जो भी आपको हडूप पे काम कर रहा होगा, वो उसको भी रिसोर्स को भी मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा. सो रिसोर्स मैनेजर का काम क्या है? मैनेज करना एंड एलोकेट्स द क्लस्टर रिसोर्सेज. नोड मैनेजर का काम क्या है? मैनेजेस एंड एनफोर्सेस नोड रिसोर्स एलोकेशन. मतलब जो रिसोर्स मैनेजर से जो कमांड आने वाले हैं, वो नोड मैनेजर उसको वो करेगा. तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्लाइंट ने कुछ मैसेज फॉरवर्ड किया, रिसोर्स मैनेजर के पास आया, तो यहाँ देखो डॉटेड लाइन दिख रही है, ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है और एक डॉट डॉट लाइन दिख रही है. तो मैप रिड्यूस का स्टेटस बता रहा है कि यहाँ से कंटेनर से ऐप के पास गया, नोड मैनेजर के पास से नोड स्टेटस कंफर्म होगा कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रिक्वेस्ट आपकी भेजी जा रही है. और वो क्लाइंट के पास, क्लाइंट रिसोर्स मैनेजर से बात करेगा और रिसोर्स मैनेजर अपने सारी रिसोर्सेज से बात करेगा. तो यहाँ पे जो AM द एप्लीकेशन मास्टर है, जो ऐप मास्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज एप्लीकेशन मास्टर. इसका काम है मैनेज एप्लीकेशन लाइफ साइकिल एंड टास्क शेड्यूलिंग. मतलब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो आप उसमें यूज कर रहे होंगे अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर. फॉर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का एक खुद का बिलिंग सिस्टम होगा, तो बिलिंग सिस्टम दैट इज द एप्लीकेशन मास्टर उनका, जहां पे वो पूरा डेटा स्टोर हो रहा होगा. अब वहां पे कई प्रकार का डेटा स्टोर होगा. एक होगा स्टॉक, एक होगा बिलिंग, मींस एक होगा डेटा इन, एक होगा एक होगा स्टॉक इन, एक होगा स्टॉक आउट.
एक होगा कस्टमर का डेटा इकट्ठा हो रहा होगा, एक क्या हो रहा होगा, पेरोल का डेटा इकट्ठा कर रहा होगा, एक अटेंडेंस को मॉनिटर कर रहा होगा। एक जगह कहीं ना कहीं जो लाइव स्ट्रीम चल रही है, कैमरे लगे हुए हैं उनके पूरे स्टोर में, वो डेटा भी स्टोर हो रहा है। आप सोचो आप, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इज स्टोर्ड ऑन द पर्टिकुलर क्लाउड। अब उस पर्टिकुलर क्लाउड पे जब इतना प्रकार का डेटा स्टोर हो रहा है, मीन्स कहीं वीडियो फाइल बन रही है, कहीं जो स्टॉक, जो गाड़ी आगे स्टॉक हमको दे के गई है वो डेटा स्टोर हो रहा है, कहीं से स्टॉक जो आउट हो रहा है वो डेटा स्टोर हो रहा है, कहीं पर कस्टमर ने जो माल खरीदा उसका डेटा स्टोर हो रहा है, कहीं पे बिल स्टोर हो रहे होंगे, कहीं जीएसटी का डेटा स्टोर हो रहा होगा। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर स्टोरिंग इन द सर्वर। सो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए देयर इज एन YARN structure. Now let us understand what different types of Hadoop versions are in the existence. तो अभी तो अपन ये मान के चलते हैं कि लेटेस्ट जो Hadoop वर्जन 3 चल रहा है, Hadoop 3 की बात हम करेंगे। पर जब इनिशियली द Hadoop द फर्स्ट वर्जन केम, तब क्या था? तो इट्स व्हाट नोन एज Hadoop 1. So this is the first and the most basic version of the Hadoop. इसमें क्या था? फर्स्ट Hadoop कॉमन, Hadoop HDFS एंड द MapReduce. अब आप यहाँ देख सकते हैं एक क्लाइंट है, देयर इज अ नेम नोड है, द सेकेंडरी नेम नोड है, द डेटा नोड है जहाँ डेटा स्टोर हुआ है, दिस आर द टास्क ट्रैकर जो टास्क को ट्रैक कर रहे हैं कि जो आपने काम हुआ है कि नहीं हुआ। अभी अपन Hadoop को और डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा नोड, व्हाट इज द रोल ऑफ टास्क ट्रैकर एंड द जॉब ट्रैकर। सेकंड अगर वर्जन की बात करें, Hadoop का जो सेकंड वर्जन आया, इट इज अ only difference between Hadoop 1 and 2 is that YARN was added in Hadoop 2. जो Hadoop 1 था उसमें अपन ने एक YARN को एम्बेड कर दिया बीच में HDFS और नोड्स के बीच में। तो HDFS में जो डेटा हमारा स्टोर है, YARN उसको रीएलोकेट करता है किससे मुझे क्या काम कराना है। Then there came a role of the containers and the dockers. Then came the role of dockers and the कंटेनर्स। यहाँ कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। तो बेसिकली कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर्स आर इट अलाउज अ डेवलपर टू पैक ऑल द एप्लीकेशन फाइल्स, all the drivers, all the libraries of the पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जो हम एप्लीकेशन डिजाइन करी है उसमें जो जो लाइब्रेरीज मुझे लगेंगी ना, उन सबको एक जगह पे उसने इंस्टॉल करके द कंटेनर डिजाइन कर देता है। और जहां पे जो कंटेनर है, then it's overall make a Docker. Docker means basically it's a tool specially designed to create and deploy all application using containers. Or containers means it's a type of a package with an application where all parts such as libraries and other dependencies are embedded there. वो सारी इकट्ठी है वहाँ containers में। Now Hadoop 3 की बात करें तो this is a recent version of Hadoop along with the all merits of first two. But the Hadoop 3 has one of the most important merit, और वो merit क्या थी? It has resolved the issue of single point failure by having multiple name nodes. अगर एक नेम नोड थी जो पहले मेरी Hadoop 1 में और 2 में, अब उसने मल्टीपल नेम नोड बना दिए हैं। मल्टीपल जगह डेटा हमारा स्टोर होता है, मल्टीपल डेटा हमारा डुप्लीकेट कॉपीज में तैयार हो जाता है, और जो डुप्लीकेट कॉपीज में तैयार हो जाता है तो हमारा डेटा को सेव कर लेता है। और वेरियस अदर एडवांटेज लाइक इरेजर कोडिंग, यूज ऑफ जीपीयू हार्डवेयर एंड डॉकर्स मेक इट सुपीरियर टू द अर्लियर वर्जन ऑफ Hadoop. तो इसमें जो डॉकर्स आ गया, जो भी हमने बात करी, बेसिकली इट्स अ टूल डिजाइन टू क्रिएट, डिजाइन टू डिप्लॉय एंड रन सम एप्लीकेशंस। सो उसके कारण वो सुपीरियर है देन Hadoop 1 and 2. Now what are the features of Hadoop? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इकोनॉमिकली feasible है, it is cheaper to store data and process than it's as a traditional approach, easy to use है, सेकंड ओपन सोर्स है तो आपको पैसा नहीं लग रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें मल्टीपल नेम नोड्स हमारे पास अवेलेबल है,
सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमारा रिमूव हो गया है, मल्टीपल हमारी कॉपीज तैयार हो जाती हैं। स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी मीन्स जरूरत पड़ने पे हम डेटाबेस को बड़ा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे रैम्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे कोर्स हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर कुछ बड़े डेटा पे हमें काम करना है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डेटा का भी है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क का भी है। लोकेलिटी ऑफ डेटा, द मोस्ट alluring and the promising feature of Hadoop. In Hadoop, to process a query over a data set, instead of bringing the data to the local computer, we send the query to the server and fetch the final result from there. And this is known as data locality. मतलब मैं चाहूं तो अपने एक छोटे से 4 GB रैम वाले पे काम कर लूं Hadoop पे। क्यों कर लूंगा? क्योंकि मैं क्वेरी यहां से क्लाउड पर भेजते हैं जहां पर Hadoop हमारा इंस्टॉल है, और वो क्वेरी वहीं के सर्वर पे सॉल्व होती है और वहां से आउटपुट मेरे सिस्टम पे आता है। दैट इज नोन एज द लोकेलिटी ऑफ डेटा, एंड दिस इज ऑल द फीचर्स ऑफ Hadoop. थैंक यू वेरी मच।